Hello students, class 10th, lesson number 3, two stories about flying, part 1, his first flight, top 20 MCQs by Let's Study with Shweta Saxena. First, the first flight is based on the theme. ये जो चैप्टर है किस थीम पे बेस है? A. सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, खुद पे बिलीफ रखना और कॉन्फिडेंस रखना. B. सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी रेस्पेक्ट करना और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना. C. जेलसी एंड हेट्रेड. D. नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस. सेकेंड, द चैप्टर कन्वेज द मैसेज दैट पेरेंट्स शुड. ये चैप्टर क्या मैसेज देता है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर मोटिवेट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए. बी. एनकरेज चिल्ड्रन टू बी स्ट्रॉन्ग, बच्चों को ये एनकरेज करना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. टीच चिल्ड्रन टू बी सेल्फ रिलायंट, बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाना चाहिए. डी. ऑल ऑफ दीज. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. ये सभी चीज़ें बच्चे को पेरेंट्स सिखाते हैं. थर्ड, विच फ्रेज मीन्स ही बिकेम वेरी फ्राइड? A. A loud scream. His heart stood still. C. Monster terror seized him. D. Both B and C. According to this chapter, it stands for D. Both B and C. His heart stood still. Monster terror seized him. So D option is correct here. Fourth, Seagull could not fly like his brothers and sister because. वो क्यों नहीं उड़ सकता था अपने भाइयों और अपनी बहन की तरह? A. He was lazy. B. He was very scared of flying. C. He didn't like to fly. D. None of these. The correct option is B. He was very scared of flying. वो पहली बार उड़ा था तो उसको बहुत डर लग रहा था. Fifth, there was a great expanse of stretch down beneath. क्या बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रेच हुआ था, फैला हुआ था नीचे की तरफ, beneath में नहीं, नीचे. A. Land. B. Rocks. C. Sky. Or D. Sea. The correct option is D. Answer is C. Sixth, his parents were perfecting his brothers and sister in the act of. उसके माता पिता उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे? A. Flying. B. Hunting. C. Swimming. D. Chirping. Answer is A. Flying. The one family member was looking at the young seagull. It was his A. Father. B. Mother. C. Brother. D. Sister. Who was looking at him when he was sitting alone? Answer is B part, mother. Eighth, the young seagull dived at the fish maddened by. जो सीगल था फिश की तरफ दौड़ा, उसे क्या लग रहा था? उसको पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ा, उसको क्या लग रहा था? उसको नींद आ रही थी, स्लीप, टायर्डनेस, हीट और हंगर. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हंगर. Ninth, the seagull dived towards his mother because a strong wind pushed him. B. He wanted to fly. C. He wanted the fish in his mother's beak. D. He wanted to reach his mother. The correct option is C. उसको अपनी माँ के चोंच में जो मछली थी वो चाहिए थी. 10th, he stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eyes. वो एक पैर पे खड़ा हो गया और उसने एक आँख भी बंद कर ली थी. क्यों? A. He was feeling sleepy. उसको नींद आ रही थी. B. It was natural habit of seagulls. seagulls ऐसे ही बिहेव करते हैं. C. He wanted to get the attention. वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था. D. He was afraid of the sea. So the correct option is he wanted to get the attention of his family, his parents. 11. The seagull was afraid to fly because. वो क्यों घबराता था उड़ने से? A. He was very small. B. His wings were not well developed. C. He was not confident. D. All of these. The correct option is C. He was not confident. 12th, who was preening his feathers? Preening का मतलब होता है चोंच से feathers को clean करना. ये कौन कर रहा था? A. His father. B. His brother. C. His mother. D. His sister. The correct option is A. His father. 13th, his parents offer him. What did his parents offer him for making his first flight? उसके माता पिता ने उसको क्या ऑफ़र किया था कि वो उड़ेगा तो उसे देंगे? A.
ट्राउट, बी सैल्मन, सी हेरिंग, डी डॉग फिश। ये सारे फिश के नेम है। इसमें से कौन सी टाइप की फ़िश उसके पेरेंट ने उसे ऑफ़र करी थी? द करेक्ट ऑप्शन इज़ द डी पार्ट, डॉग फिश। 14th, टिक द वर्ड दैट मीन द सेम एज वर्ज। वर्ज किसका मीनिंग है इन वर्ड्स में से? ए लेज, बी ब्रिंक, सी फ्लैप, डी बेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रिंक। 15th, हाउ मच टाइम वॉज द यंग सीगल अलोन। वो कितनी देर तक अकेला था? ए 45 minutes, बी 3 days, सी 24 hours, डी 1 week। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, 24 hours। 16th, द होल फैमिली वॉज टॉन्टिंग द सीगल फॉर। पूरी फैमिली टॉन्ट कर रही थी। टॉन्ट मीन्स उल्टा सीधे कमेंट करना, किसी की लेग पुलिंग करना। टॉन्टिंग द सीगल फॉर, किस चीज़ के लिए उसकी टॉन्टिंग कर रही थी उसकी फैमिली? हिज फुलिशनेस, हिज लाइंग, हिज हंगर, हिज कॉवर्डाइज। किसके लिए? उसकी चालाकी के लिए, उसके झूठ बोलने के लिए, उसकी भूख के लिए, या उसके अंदर जो बुज़दिल सा वो फील कर रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, किसके लिए? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 17th, टिक द वर्ड दैट मीन द सेम एज कंज्यूम। कंज्यूम किसका मीनिंग है? डेवर, हेरिंग, कैकल, क्लिफ। आंसर इज ए डेवर। 18th, व्हाट मेड द यंग सीगल टायर्ड। यंग सीगल किस लिए टायर्ड हो गया था? ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से। हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड हंगर, उसकी पहली उड़ान और उसकी भूख की वजह से। हिज फियर, उसकी थकान की वजह से, उसकी डर की वजह से। डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड हंगर। 19th, द यंग सीगल फेल्ट टेरिफाइड अपॉन लैंडिंग ऑन द सी बिकॉज। जब यंग सीगल सी पर उतरा तो वो क्यों डरा हुआ था? ए हिज लेग्स सैंक इनटू द ग्रीन सी, बी ही कुड नॉट कैच द फिश, सी ही वॉज हैंग्री, डी नन ऑफ दिस। क्योंकि उसके जो पैर थे वो हरी हरी समुद्र में डूबने लगे थे। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 20, इज फर्स्ट फ्लाइट प्रूव द सेइंग। ये कौन सी कहावत सूट करती है इस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर पर? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, गॉड इज़ वन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। की जब ज़रूरत होती है तो आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग नई इन्वेंशन कर पाते हो। जैसे कि सीगल ने अपनी ज़रूरत के, अपनी उसकी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ही ली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।